Hello guys, this is Sir Mahad Amir and SirMahadAmir.com is a one-stop solution for O-levels, IGCSE and A-level physics needs. You don't need to go anywhere, you can get the access to the topical past papers, all the high-class recordings, best possible content for your board that can allow you to get to that desired A star. So feel free, enjoy the lectures and do share it with your friends. Thank you. Hello guys, this is your physics instructor Mahad Amir and today हम लोगों को good news is कि we are done with the section of waves. Those 5 chapters, दो 4 होते हैं but I consider lenses are different chapters, so 5 chapters, a lot of past papers combined भी individual भी बहुत मजा आया. We did every question that there was there. So अब हम लोग जो आज की working शुरू करेंगे, that is the new section of electricity and magnetism, and I start off the section with the first chapter of electrical quantities. बहुत मजा आने वाला है. It is going to be a good section. Around इसमें भी we have got 3-4 chapters. तो उनको हम लोग one by one discuss करेंगे. Inshallah we'll be done with that very soon. What is electric charge? Sir, charge क्या होता है? The question starts here इस chapter का कि what is a charge? तो भाइयों charge एक physical property है मैटर की. समझे मेरी बात को? अगर एक चार्ज की बात करूं, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. मतलब सर बेसिकली इफ समथिंग इज चार्ज तो उसको मैं किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा, इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज के करीब एक पॉजिटिव चार्ज रिपेल हो जाएगा, इस तरीके से बात कर रहा हूं दैट इफ अ चार्ज की बात की जाए तो इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट इज चार्ज? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेस अ फोर्स टू बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. एक अब अपने पास दुनिया में 2 तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. और हर न्यूट्रल चीज में, ये माउस भी न्यूट्रल है, ये कैलकुलेटर भी न्यूट्रल है, हर न्यूट्रल चीज में याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं. इट हैज गॉट इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव गॉट दिस 4 different things. I've got a balloon, I've got a wall, and I've got another balloon, I've got like this something shared. All these 4 things, if you count, के पास equal number of charges हैं. ठीक है, जितने positives हैं उतने negatives हैं. So for any neutral thing, एक neutral atom भी, अगर मैं किसी भी atom की बात करूँ, let's say we have got an atom over here, it has got equal number of electrons and equal number of protons. So हर neutral atom के ऊपर equal number of charges होते हैं. Meanwhile, guys, एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है that is 1.6 exponent 19 C, and the C is coulombs, that is the SI unit of charge. चार्ज को मेजर करने के लिए we'll be using a formula, and that formula I'll discuss in a bit. And then चार्ज को जो मेजर करने के लिए यूनिट we will use ना, that is coulombs. Coulombs is going to be the SI unit of charge. क्या होता है मैं आपको बताता जाता हूं, परेशान नहीं. Whereas एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, चार्ज इन एन इलेक्ट्रॉन इज negative 1.6 exponent 19 coulombs minus 1.6 times 10 to the power of 19 coulombs का इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. एंड 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एक इक्वल, क्योंकि इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव है. डेफिनेटली we all know कि सर जो like charges होते हैं, if 2 things are positively charged they would repel one another, and if 2 things are negatively charged they would attract, if 2 things are oppositely charged, positive and negative would attract one another. जो चीजें like charged होंगी, if they are both positive they would repel, if they are both negative they would repel, and if they are oppositely charged तो वो definitely एक दूसरे को attract करेंगे. अज्यूम करते हैं इस बात को कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को 10 न्यूटन्स की फोर्स से रिपेल करते हैं, तो अगर एक +2 का चार्ज एक +1 के चार्ज के साथ रख दूं, स्टिल इट वुड रिपेल ईच अदर बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स ईच. क्योंकि ये न्यूटन्स का 3rd लॉ ऑफ मोशन अबाइड करते हैं, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स. तो इफ दिस चार्ज इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टू द 2 plus charge, then this would again apply a same amount of force to the other charge as well. Meanwhile, if 2 charges are attracting each other, they would be attracting each other by a same amount of force. ये बात अपने ध्यान में रखिएगा. The force is same. और एक और important बात, the closer the charge, the larger the force.
इस बात को आप A2s में बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हेन वी स्टडी द कूलम्स लॉ एंड एवरीथिंग, बट मीनवाइल हमारे पास बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग इस सिलेबस में ओ लेवल्स और IGCSE के लिए, तो आई गेस यहाँ तक इसको थोड़ा सा जितना भी लिमिटेड है वहाँ तक रखेंगे। अच्छा गाइज, अब जरा थोड़ी सी बात सिलेबस से रिलेटेड कर लें ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि कोई इशू ना रहे। बेटा व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस ऑफ IGCSEs, हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में जो आज के लेक्चर में हम लोग ये वर्किंग करेंगे, वी वुड बी डिस्कसिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, लाइक रिपेल करते हैं, डिस्क्राइबिंग द एक्सपेरिमेंट्स टू शो द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट दैट चार्जिंग अ बॉडी इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चार्जेस आर मेजर्ड इन कूलम्स, वी जस्ट डिस्कस दैट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, फोर्सेस, उसके अलावा जो है पॉइंट चार्ज वगैरह के भी फील्ड चार्जेस अभी देखेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन को भी देखेंगे, ठीक है। एंड रिकॉल द यूज ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉडल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीनवाइल अगर मैं ओ लेवल्स के सिलेबस की बात करूं, फॉर ओ लेवल्स द सिंपल सिलेबस इज वेरी वेरी सिमिलर, 99% सेम है, एक छोटी सी बात इसमें चेंज है, बट वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवाऊंगा लेक्चर में, तो इवेंचुअली आप उसको भी समझ जाएंगे, ठीक है। दोनों सिलेबस को रीड कर लीजिएगा, आपको ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट लेट्स मूव ऑन गाइस। अब हमारे पास जो है वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है वेयर इफ आई प्लेस अनदर चार्ज तो इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, दैट फोर्स कैन बी अट्रैक्शन, दैट कैन बी रिपल्जन, डेफिनेटली वी जस्ट डिस्कस के लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड वेयर एज अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं एक फोर्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड is a region and a space around a charge where another charge experiences a force, and that force can be attraction, it force can be repulsion as well। ये force attractive भी हो सकती है and repulsion भी हो सकती है। अब ये बात ये है कि सर अगर फील्ड लाइंस की बात करें तो ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो बेटा पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस बनाई जाती हैं दे आर रेडियली आउटवर्ड्स। इस बात से क्या मतलब है, अभी मैं आपको 2 सेकंड में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइंस होनी चाहिए। दिस इज अ परफेक्ट फील्ड लाइन पैटर्न ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आपके पास फील्ड लाइंस में गैप्स सेम होने चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज को हम कंसिडर करते हैं एज अ हाई पोटेंशियल चार्ज। हाई पोटेंशियल का मतलब फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से बाहर की तरफ जाती, फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज में बाहर की तरफ निकलेंगी, एंड दे वुड tend to meet at the center, that's why it is called radial। रेडियल लाइंस होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि ऐसा अज्यूम हो कि ये एक सेंटर में जाके मीट करती हैं, और ये पेपर में 2 मार्क्स का सवाल आता है टू ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये बात याद रखनी है दैट फील्ड लाइंस मस्ट बी रेडियल एंड दे शुड मीट एट द सेंटर और परफेक्ट होनी चाहिए। तो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इट इज अ हाई पोटेंशियल चार्ज, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ड्रॉन आउटवर्ड्स। For a negative charge it is a low potential charge, और पॉइंट चार्ज में, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज में हमारी जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज ड्रॉन इनवर्ड्स। एक नेगेटिव चार्ज की जहां तक बात रही होगी तो नेगेटिव चार्ज में जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है दैट इज इनवर्ड, और नेगेटिव चार्ज को हम लोग एक लो पोटेंशियल चार्ज कंसिडर करते हैं गाइस। तो ये एक लो पोटेंशियल चार्ज है।
इस बात से क्या मतलब है ये हम बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बट मीनवाइल for a positive charge it is a high potential charge, the field lines goes outwards, and the negative charge it is a low potential charge, the field lines tend to come inwards. यहां तक बात क्लियर होती है. मूविंग ऑन सर, हमारे पास अब अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और डेवलप करते हैं दैट व्हाट इफ वी हैव गॉट टू पैरेलल प्लेट्स. I've got two parallel plates, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, and parallel plates एक यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिफॉर्म फील्ड से मुराद है सर कि जो फील्ड लाइंस होंगी पैरेलल प्लेट्स की, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल टू वन अनदर. ये शो करती है दैट इस पूरे सिस्टम के अंदर देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कहीं पे भी चार्ज को प्लेस करूंगा, चार्ज वुड एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. इस पूरी फील्ड के अंदर चार्ज वुड एक्सपीरियंस द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स. टॉप और बॉटम पे हम लोग इसको जो है कर्वेचर बनाते हैं. दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू वन अनदर, कमिंग आउट द पॉजिटिव गोइंग टू द नेगेटिव. और ये हमारे पास क्वेश्चंस बहुत कॉमनली एग्जाम में आ रहे होते हैं. दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगी एंड लाइकवाइज. अब बात ये है हमारे पास कि सर ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉर अ पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज. फॉर पैरेलल फील्ड लाइंस जहां पे यूनिफॉर्म फील्ड की बात करता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट एंड एंड ऑन द नेगेटिव प्लेट. Meanwhile, the field is uniform near the middle and the plates where the electric field are parallel. What is basically this? Why are they not parallel? And why are field lines like this? And what is a field line? मेरे बच्चों देखो, ये जो field line है ना, ये represent करती हैं कि what would happen to a test positive charge if placed at that point on a field. सुनिएगा मेरी बात. अगर मैं यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को रख दूं तो वो अवे जाएगा, ठीक है. अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दूं तो वो यहां जाएगा. सिमिलरली अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहां रख दूं तो इट वुड टेंड टू गो टुवर्ड्स द नेगेटिव. यहां रखूंगा पॉजिटिव चार्ज को तो वो वहां जाएगा. तो दिस फील्ड लाइंस, सवाल पेपर में है व्हाट इज मेंट बाय फील्ड लाइंस, व्हाट डज द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स. तो याद रखिएगा फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट. इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट. कि भाई उस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन होगी क्या, दैट इज व्हाट द फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स. गाइस अगर मैं इसको यहां रखूंगा ना पॉजिटिव चार्ज को, यू वुड रियलाइज कि ये पॉजिटिव चार्ज एक कर्वेचर लेके जाएगा. तो ये इस पॉइंट पे यूनिफॉर्म नहीं है फील्ड, तो दैट इज वाई हम उसको कर्वेचर बनाते हैं. एंड इसके क्वेश्चन बहुत कॉमनली एग्जाम में आ रहे होते हैं. किस तरीके से आ रहे होते हैं, व्हाई नॉट लेट्स हैव अ लुक एट दैट, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट्स मैच्योर हो जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल आ गया कि भाई ये बोलता है 2 नंबर का, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट थी, पैरेलल प्लेट्स थी. आपने इसकी जो है ये हमारे पास यहां से आपने जो है एरो बनाया एंड 2 बनाए, 4 बना दिए, खत्म सर. पैरेलल प्लेट्स 5 लाइंस बना दी. दैट वुड मेक मोर सेंस. सर आप बोलते हैं कि किसी ने इसको कर्वेचर एंड में बनाना है तो दे आर अलाउड टू मेक द कर्वेचर. उसमें कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं है, बट उसकी कोई मार्क्स अलॉटमेंट भी नहीं है, ठीक है. वो आप अपनी खुशी की खातिर बना सकते हैं, ठीक है. इसके आगे जो भी इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा, बट फिलहाल इतना ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ सच नहीं है. और जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं विल बी डिस्कसिंग दैट इंशाल्लाह, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा अच्छे हो जाएं, ठीक है. अच्छा, अब सवाल आता है कि सर व्हाट वुड हैपन अगर मैं 2 स्फीयर्स को रख दूं. अगर मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव स्फीयर को साथ रखूंगा ना, तो फील्ड लाइंस कर्व करती हुई बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी. बीच में एक स्लाइटली यूनिफॉर्म रीजन बनता है, बट अगर पेपर में इसको बनाने के लिए आ जाए तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू ड्रॉ 5 लाइंस. 3 जस्ट द वे आई डिड देम, 4 थोड़ी इस तरीके से, 5th थोड़ी इस तरीके से,
एंड देन एक सीधी बाहर की तरफ, दैट्स द 6th वन। आप ये 6 लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव की तरफ आ रहे होंगे। बेटा दिस लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द चार्ज, द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये यहाँ से घूम के बाहर से आता है। दिस इज बेसिकली द 3 डायमेंशनल नेचर ऑफ द चार्ज। बाकी अदरवाइज फील्ड लाइंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्फीयर्स कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती हैं, ठीक है। लाइकवाइज सर, अगर मैं लाइक चार्जेस को रिपेल करवाता हूँ, इफ आई एम रिक्वायर्ड टू रिपेल द लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस के बीच में देयर इज अ रीजन। दोनों लाइक चार्जेस की फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं, एंड देयर इज अ रीजन इन द मिडल जो यहाँ पे होता है, वेयर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, एंड दिस देयर इज अ रीजन दैट इज नोन एज नल पॉइंट। ये रीजन हमारे पास नल पॉइंट कहलाता है, एंड नल पॉइंट इज बेसिकली रीजन जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। दोनों चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया, एंड देयर इज द रीजन इन द सेंटर दैट इज नो पोटेंशियल रीजन। वहाँ पे देयर इज नो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, बट मीनवाइल याद रखिएगा, नल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो गाइस ये हम लोगों ने सारी वर्किंग अभी तक डिस्कस की है। व्हाट आर चार्जेस, व्हाट आर फील्ड लाइंस, व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय फील्ड लाइंस। मीनवाइल यहाँ से नेक्स्ट क्लास एंड वहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस लेक्चर को हम लोगों ने, इस चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने 2 लेक्चर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।